राजयोग जिसको बोलते हैं, कौन से नंबर से राजयोग बनता है? 4 और 8 वाले पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, और कोई नंबर नहीं कर पाता नहीं है। कमा। If 4 and 4 gets married to each other, then इट्स अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। हम फिल्म इंडस्ट्री में काफी देखते हैं कि काफी लोग अपने नेम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जैसे शाहरुख खान, वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छे ऑक्टेव पे आते हैं 6 के, शुक्र का। हिज रियल नेम इज नॉट शाहरुख खान, बट व्हाट ही इज यूजिंग इट हेल्प्ड हिम बी वेरी सक्सेसफुल। Does changing signature affect numerology? Of course. यू आर व्हाट योर सिग्नेचर इज। Number 1 represents what? सन। देखोगे अंबानीज में नंबर 1 और नंबर 9 बहुत कॉमन है उनके सारे फैमिली में। मुकेश जी के, उनकी गाड़ियों के भी आप नंबर देखोगे तो टोटल 1 और 9 पे ही यूज करते हैं। When I see my phone, I'll definitely see 1111. The universe is sending you messages. Either आप विश करिए या आप थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, वो Gratitude. ग्रैटिट्यूड दीजिए, वो Okay. मैनिफेस्ट हो जाएगा। And if they want to calculate their destiny number, तो वो कैसे calculate करेंगे? हाय ग्लो फैम, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सर्टेन नंबर्स अपनी लाइफ में बार बार क्यों आते रहते हैं? मे बी यू आर बॉर्न ऑन द नंबर 7, या आप हमेशा 1111 पे क्लॉक देखते हो, या फिर आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और सब कुछ समहाउ सेम डिजिट पर ऐड हो जाता है। What if the numbers hiding in your birth date and name were never random, but a kind of soul signature, written before you even arrive? A code that shapes your personality, your purpose, and maybe even the way you style your hair, the colors you reach for, the energy you carry when you walk into a room. Today we are cracking that code with someone who lives and breathes this work, and joining me is someone who works at the intersection of numbers, destiny, and real world success, a destiny management expert, celebrity astrologer, film financier, and an entrepreneur too. He has not only guided people personally, but has also worked behind the scenes in the film industry, where even something as simple as a name can influence outcomes. Sushil Kangya, welcome to the show. Thank you, Ghazal ji. So how are you feeling today, Sushil ji? I'm super duper rocking, blessed. सुशील जी, what made you enter into numbers? क्या आपके कोई पर्सनल it was from your personal experience, or maybe there was some emotion behind that, or कोई deep understanding थी that you wanted to choose this field? Basically, I was hungry for success. There's a saying in English, when a student is ready, master appears. I was looking for something big to happen in my life. And there was somebody very close to me, introduced me to a numerologist, astronumerologist, who happens to be my guru also in UK. When I was studying in US, I was looking out, to get out of a job and do something of my own, because I realized job will not take me where I want to reach. And when I met my Guruji, and he asked me to do a couple of changes, and he told me, when you change your name, energy, your signature, and there were few more inputs from him. I agreed to him, but I did not believe him that time. But after changing my signature, then there was no looking back. And I asked him, okay, how does it work? And I want to learn it. So he said, why do you want to learn it? I said, I just want to know. I'm so excited because the kind of life I used to dream, I'm living my dreams. Now things have started working for me. And then he said, I'm not here to teach you. If you just want to learn, if you want to practice. And then he also checked my astrological chart, and there is in numbers and astrology also, when generally what happens, बहुत सारे astronumerologists है, बड़े-बड़े astronumerologists को मैं जानता हूँ, they are good enough, but most of them don't check, वो astrological chart check नहीं करते हैं. Generally powerful numbers होते हैं 1, 3, 5, 6. These are good numbers, but 9 numbers are 9 planets, and 9 planets are 9 numbers. So the number which न्यूमरोलॉजिस्ट आपको जो लेकर आता है, वो आपका एक प्लैनेट भी होता है. तो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में पता चलता है कि वो कहाँ बैठा है, हाउ पावरफुल इज दैट, वो भी देखा जाता है. कुछ रिलीजन में हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, तो उनका चार्ट नहीं होता. तो पामिस्ट्री प्लेज अ वेरी बिग रोल. Palmistry is a big tool which we follow. Coming back to your question, so I did my changes and I met my Guruji, and he said, if you do this, you'll rock in this work, because आपकी energy, आपकी astrology, आपकी numerology ये बताती है कि you can become a good astronumerologist. Then I agreed to him. So probably I will not say this. I chose this field. This field chose me. ऐसा हुआ. Okay. So what changed in your life on a regular basis when you play with the numbers? See, we all money is a
big motivation. So I was पैसा था नहीं हमारे पास. I come from a very humble background. चौल में रहना, बहुत लोगों की स्टोरी होती है ऐसी. So after doing changes, after changing my signature, मैंने तो अपना नाम भी चेंज नहीं किया था, तो सिग्नेचर चेंज करने के बाद अपॉर्चुनिटीज आने लगी, बैंक में डिजिट्स चेंज होने लगे. So that Interesting. yes, that kept me excited. Okay. Yes. So do you use numerology in your daily life? क्या हम कब आप if you buying a new vehicle, तो then you buy according to numerology, or maybe हम phone कुछ buy कर रहे, so there is any concept behind that buying any new thing? एब्सोल्युटली. जैसे आप फ़ोन की बात कर रहे हैं, हाँ, न्यूमरोलॉजी जैसे 4 और 8 जो भी डेट्स हर महीने 4 और 8 पे जुड़ के आती है, मैं ट्रांजैक्शंस नहीं करता. हाँ, अगर कहीं, एंड आई ऑल्सो सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि आप उस दिन ट्रांजैक्शन मत करिए. हाँ, अगर कोई दे रहा है पैसा, आप कमा रहे हो, तो उसको मना करने की ज़रूरत नहीं. यू कैन टेक इट, बट कोई नई चीज़ करनी है, जैसे मोबाइल लेना है, तो अपने लकी अनलकी नंबर्स पे ना करें. हाँ. तो हम फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी देखते हैं कि काफ़ी लोग अपने नेम मॉडिफाई कर रहे हैं. यू हैव सीन, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सेलेब्स आर मॉडिफाइंग देयर नेम्स. तो हैव यू पर्सनली मॉडिफाइड एनीवन्स नेम, और आपने पर्सनली उनके आउटकम्स ऑब्जर्व किए हैं? एब्सोल्युटली. बहुत सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे हैं, और उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. दैट इज़ हाउ वर्ड ऑफ माउथ से मैंने शुरू किया था एक प्रोड्यूसर के साथ. उनको अच्छे रिजल्ट आए तो उन्होंने मुझे वर्ड ऑफ माउथ से कहीं पे रेफ़र किया. फिर दैट्स हाउ फ्रॉम one celebrity to many celebrities, and big billionaire businessmen also are my clients. From slum area to a billionaire, it is a journey of mine. When you see numbers, what connection do you feel with the numbers? Connection is when what energy are you vibrating on? See, you are what you eat. Yeah. We were all this small when we were born. Yeah. So now we grow, and हम खाना खाते हैं. Food is energy. Even numbers are energy. When your numbers are favorable and they are aligned to your energies, then you what energy are you vibrating on? That matters a lot. Okay. Yes. So Shreeli, जैसे I keep on seeing 1111 multiple number of times, and every time, when I see my phone, I'll definitely see 1111 in the morning. So when I repeatedly I'm seeing every day that number 1111, does this signify anything? एंजल नंबर्स है. यस, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू मैसेजेस. वो एक यूनिवर्स इज सेंडिंग यू मैसेजेस. वंस यू लुक एट देम, यू अट्रैक्ट. वो बार बार आते हैं. और ऐसा भी है कि अगर मुझे एक बोलते हैं ना, माइंड विजन भी होता है. अगर मुझे लेना है, BMW लेनी है, और वो ब्लू कलर में वही मॉडल है, तो काफ़ी बार मुझे सड़क पे वही दिखेगी. यस, यू मैनिफेस्ट. यस, मैनिफेस्टेशन होता है. जो चीज़ आप चाहोगे, आप कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स मैसेज भेज देता है कि हाँ, ये आपके लिए ऐसा भी है. सुना है कि 1111 पे जब हमें वो दिखता है, when we ask for wish or wish something, there it will come true. So is it true? यस. Okay. आइदर आप विश करिए या आप थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, वो Gratitude. ग्रैटिट्यूड दीजिए. वो Okay. मैनिफेस्ट हो जाएगा. So what are the code numbers, Sushil ji, listeners should know? Like life path number क्या है उनका, destiny number क्या है, पर्सनैलिटी नंबर क्या है. तो कौन से नंबर पता होने चाहिए और कौन से नहीं पता होने चाहिए? सारे नंबर्स पता होने चाहिए. अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए. डेस्टिनी नंबर जो होता है, जो आपका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ होता है, जो जैसे कोई 24 सितंबर पे बॉर्न हुआ है, तो 24, 2 + 4 6. अच्छा, So that is a destiny number. And What is the life path number? when you जैसे 24 सितंबर 1999 एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको टोटल करेंगे, तो जो टोटल नंबर आता है लास्ट में, वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है. Okay. जी. And soul urge number? सोलर नंबर इज उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट ठीक है. व्हेन यू टोटल योर डेट ऑफ बर्थ, योर लाइफ पाथ एंड योर डेस्टिनी, और जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हो, वो आपका ज़ोडिएक साइन बोला जाता है. वो भी आपको एक एलिमेंट देता है. अर्थ एलिमेंट होता है, वाटर फायर एलिमेंट होता है, वो भी देखा जाता है. प्लस उसके अपनी नंबर ऑफ, जैसे अगर आप अगस्त में पैदा हुए हो, तो नंबर 8 मंथ है, लेकिन वो 8 नंबर मंथ नहीं है, वो 1 नंबर का एनर्जी दे रहा है, वो सन का एनर्जी दे रहा है. इट्स अ लियो साइन. सो वो 1 का एनर्जी दे रहा है, बहुत अच्छा माना जाता है. 1 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्टेव ऑफ सन. सो हम काफ़ी रील्स देखते रहते हैं, 4 नंबर जिसका है उसके साथ ये होगा, 4 नंबर वाले दुश्मन होते हैं काफ़ी जनों के. तो ये नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं? मतलब दैट इज़ आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, या 4 नंबर मतलब ओनली आप जो बॉर्न हुए हो, मतलब द फर्स्ट नंबर? नहीं है, डेस्टिनी में भी अगर 4 आ जाए और लाइफ पाथ में भी 4 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है.
चार आप Okay. देखोगे नेचुरल कैलामिटीज लाइक सुनामी, अर्थक्वेक या कोई एयर क्रैश हो गया, कोई अभी जैसे बीच में सुनामी 26 पे आई थी, फिर टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, वो 26 पे आया था, बाढ़ आई थी हाँ, मुंबई में हाँ। 26 पे आई थी। तो 4 और 8 थोड़े स्कैरी डेट्स होते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर आ जाए इंसान के तो वो कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन उनकी नेम एनर्जी और सिग्नेचर चेंज करके उनको अच्छी एनर्जी पे वाइब्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड इट इज़ लाइफ चेंजिंग। ओह, बट 4 और 8 के लिए एक और बात है, वो लोग डरते हैं कि हाँ उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बट 4 और 8 नंबर्स की तरह कोई स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। इफ़ यू चैनलाइज योर एनर्जी करेक्टली फॉर दोज नंबर्स, तो जो 4 और 8 वाले पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, वो बहुत ही वो और कोई नंबर नहीं कर पाता नहीं है। कमा या पाता। लेकिन उनको सक्सेस भी मिली कब, तो बहुत लेट मिली। तो जनरली 8 नंबर इज सैटर्न। सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, तो लॉजिक उसके पीछे 8 नंबर का, तो सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, लॉर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स है, बहुत दिक्कतें आती है। तो अगर अपना नेम एनर्जी आप करेक्ट कर देते हो, सिग्नेचर करेक्ट कर देते हो, तो देन यू सी गेम चेंज हो जाता है लाइफ का। सो लाइक सेम नंबर सबके लिए काम आता है। अभी 1 वीक पहले आई वॉज डिस्कसिंग एंड लाइक सिटिंग विद समवन एंड डिस्कसिंग। अब वो मुझे बोला था कि मैं 6 नंबर पे लेके आ जाऊंगा अपने नेम को एंड आई हैव ब्यूटीफुल लाइफ एंड ऑल। तो इज द सेम फिलोसफी वर्क फॉर एवरीवन कि सबको अगर 6 नंबर पे ला दिया जाए तो एवरीवन लाइफ विल बी लग्जूरियस एंड ऑल? नहीं, 6 नहीं। नंबर सबके लिए काम नहीं करता है। उसी के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से मैं कंसल्ट करता हूँ किसी के साथ भी। दैट इज़ आवर रिजल्ट। मैं तो अगर कोई कंसल्ट करना है मैं तो बोलता हूँ मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको रिजल्ट की, आप स्टैम्प पेपर ले आइए, मैं लिख के देता हूँ जो कोई लिख के नहीं देगा। जनरली अगर 6 पे लाना है किसी को तो उसके लिए उनका शुक्र देखा जाता है। वीनस, प्लैनेट वीनस, अगर वो 8th हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो अगर आप उनको 6 पे लेकर आएंगे तो वो फिर काम और काम उल्टा होने लगेगा, एंड दे विल स्टार्ट फेसिंग मोर प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। सो Okay. 6 इज अ वेरी गुड नंबर इन न्यूमरोलॉजी, बट डजंट सूट एवरीवन। ओके, Yeah. मतलब इवन वर्क पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि आप किस फील्ड में हैं, जी, उस अकॉर्डिंग आपका नंबर भी मैटर करता है। फील्ड से ज़्यादा आपके प्लानिटरी पोजीशंस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका Okay. नेम एनर्जी, वो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके प्लानिटरी पोजीशंस को देखकर अगर आपका नाम एनर्जी किया जाए तो बेस्ट काम करता है। दैट्स हाउ इट वो वर्क्स। अच्छा रहता है। यस। काफ़ी लोग आजकल दे आर ट्राइंग विच आई हर्ड कि इवन सेलेब्स आर डूइंग इट कि बच्चे को बॉर्न करवाना है 6th डे पे। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड इट, ताकि उसके चार्ट में वीनस आ जाए। तो इज दिस Absolutely. ट्रू कि हम किसी प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करने में हर्ज नहीं है। अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसमें आपको एक मौका मिला जाता है। नेचुरल वे से हो तो फिर उसमें हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो सिजेरियन है तो देन यू कैन डेफिनेटली चूज अ डेट, बट उसमें भी लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप 24 सितंबर ले रहे हो एज अ डेट ऑफ बर्थ, तो फिर वो ईयर 1998 है, फॉर एग्जाम्पल 2026 है, 24 सितंबर 2026, तो उसका टोटल में अभी अगर 8 और 4 आ जाए तो फिर वो 6 भी काम नहीं करेगा, दिक्कतें आने लगती है। तो देन वी सजेस्ट देम कि आप 5 पे आ जाइए, एक दिन पहले कर लीजिए, आप 3 पे आ अच्छा। जाइए, बिकॉज 1 3 5 6 दीज आर पावरफुल So नंबर्स there's एंड यू no कैन set rule कि नो आपको। सेट रूल। Oh, let us walk us through the math. अगर कोई हमें लिसनर देख रहा है एंड इफ दे वांट टू कैलकुलेट देयर डेस्टिनी नंबर, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैंने बोला, एक 15th ऑफ जनवरी 2008 फॉर एग्जांपल, तो 15 इज 6, दैट्स देयर डेस्टिनी नंबर, 1 + 5 Okay, 6। okay. फिर अगर लाइफ पाथ को कैलकुलेट करना है तो 15th ऑफ जनवरी 15 + 1 = Okay. 16, 2026, तो 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 and 6 26, तो लाइफ पाथ भी ईयर का देखा जाए डेट ऑफ, तो लाइफ पाथ 8 हो गया। सो जैसे हमारे एवरी ईयर कोई ना कोई नंबर रूल करते हैं, जैसे दिस ईयर इज द सन 1 नंबर रूल कर रहा है, Yes. राइट? नंबर ऑफ सन। सो ये भी हमारे बर्थ डेट पे इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल, बर्थ रेट पे नहीं। हाँ, अगर आप, बहुत लोगों को दिक्कत आती है अगर उनका नेम एनर्जी ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। बहुत लोगों का नेम एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा, जैसे शाहरुख खान, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छे ऑक्टेव पे आते हैं 6 के, शुक्र का 42 नंबर पे उनका नेम जुड़ के आता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट हिज रियल नेम इज़ नॉट शाहरुख खान, बट व्हाट ही इज़ यूजिंग, दैट इज़ हाउ आई फील इट हेल्प्ड हिम बी वेरी सक्सेसफुल। ही इज़ अ बेस्ट एक्टर ऑल्सो। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। बट आपको ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू सेड हाँ इम्पैक्ट करता है। अगर ये साल 1 पे जुड़ के आ रहा है
और आपका डेट ऑफ बर्थ आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो डेफिनेटली आपके लिए फेवरेबल आपके लिए होगा। फेवरेबल लेकिन अगर रहेगा। आपका नेम एनर्जी अच्छा नहीं है तो हाँ, वो प्रॉब्लम करेगा ही तो अगर करेगा। आपका नेम एनर्जी अच्छा नहीं है बट अगर आपका नंबर ऑलरेडी अच्छे इस पे आ रहा है, डेस्टिनी नंबर या अच्छा है, तो भी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, इट वोंट यस गिव यू पॉजिटिव यस, रिजल्ट। और ये भी होता है कि अगर आप अपने लाइफ के 35th ईयर में फॉर एग्जांपल तो वो 8 पे आ गया, 40th ईयर में तो 4 पे आ गया, अच्छा, 22nd तो वो ईयर इयर्स तो वो भी बेकार आप जाएंगे। देखोगे ना। ओके। जनरली आप अगर ये देखोगे, नोटिस करोगे, लाइफ में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है जब वो 35th ईयर में होते हैं, 44th ईयर में होते हैं। बहुत मैटर करता है। इवन नेम एनर्जी अगर 4 और 8 पे जुड़ के है, जैसे गौतम सिंघानिया रेमंड्स के जो ओनर है, उनके डैडी के पास उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोलूँगा। तो विजय पथ सिंघानिया, उनके पास हज़ारों करोड़ थे, और लेकिन उन इतना हो सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था, बिकॉज हिज नेम एनर्जी एडेड टू 76। ऑल हिज लाइफ हिज नेम एनर्जी वॉज, व्हेन यू एडेड इट इज़ 13 विच इज़ 4। तो वी ऑल नो कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ कैसी थी, सब कुछ होने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन, एंड देन अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे विद द टफ लाइफ व्हाट ही ओह, लिव्ड। तो मतलब सबकी लाइफ में 40 ईयर या 44 ऐसे ईयर्स दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड इन द सेंस वो दिक्कत देता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम जाती देता है। है। अगर आपकी नेम एनर्जी करेक्टेड है, सिग्नेचर करेक्टेड है, अगर आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को ठीक तरह तो से आपका फॉलो कर रहे 40 हो। और 44 निकल यस यस जाता है यस। आराम से। ज़्यादा इसमें मैं खुद क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि ज़्यादा इन्वॉल्व होने, ज़्यादा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक इंस्टॉलेशन सिस्टम नाम की चीज़ होती है, तो आप अपना एक बार आप नेम चेंज एक कर बार देंगे, करवा लिया से फिर हाँ देन यू आर गुड टू देन यू गो। फील फ्री, डू वट एवर यू वांट, आपको सक्सेस मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगी हाँ, जो आनी चाहिए। ओके। यस आपने देखा होगा कि बर्थ नेम जब रखा जाता है एंड देन फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद काफ़ी सारी फैमिलीज में कंपलसरी है कि अपने हस्बैंड का नेम ऐड करो इन मिडिल, और यस फिर वापस लास्ट नेम ऐड करो। तो फिर जो भी कुछ किया गया है, पेरेंट्स ने जो नाम रखा है, वो कम्प्लीटली एक एनर्जी डिफरेंट जोन में शिफ्ट बिल्कुल हो गई। बिल्कुल। तो व्हाट इम्पैक्ट इट पुट इन समवंस लाइफ? अगर शादी के बाद लड़की अपना नाम चेंज करती है, अपना ससुराल का, इन लॉज का जो सरनेम होता है, और हस्बैंड का नेम बीच में ऐड करती है, तो डेफिनेटली एनर्जी चेंज हो जाएगी। वो टोटल अगर पॉजिटिव नंबर पे नहीं आ रहा तो वो दिक्कत देना शुरू करेगा। ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स, फिर से मैं उनको बोलता हूँ स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, थोड़ा बहुत ए ऐड करना है, ई ऐड करना है, कुछ निकालना है। तो अगर लीगली वो कुछ नहीं कर सकते हैं, काफ़ी हम्म फैमिली से प्रेशर होता है, दैट, हम्म। तो अगर वो नेम लीगली चेंज नहीं करे और सिर्फ फेसबुक या इंस्टा या सोशल मीडिया में या रेगुलर खुद राइटिंग में चेंज कर ले, तो विल इट वर्क? वो काम करता है लेकिन वो टाइप का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर उनको वो हाँ, रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट सिग्नेचर चेंज करिए, तो आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा। सिग्नेचर चेंज कर सकते कि हैं आप बैंक अगर में। लीगली आप अपना नेम नहीं चेंज कर सकते हो तो आप डेफिनेटली सिग्नेचर्स चेंज कर दो फिर। डेफिनेटली। अभी मेरे क्लाइंट हैं जिनको गोल्डन वीज़ा मिल रहा हम्म। था दुबई में, तो उन्होंने बोला नेम चेंज नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दुबई में, बिकॉज इंडिया के लॉज अलग है। तो उनका नेम एनर्जी भी काफ़ी टफ नंबर पे था, उनको काफ़ी दिक्कतें थी, पर उनका सिग्नेचर चेंज किया एंड दे आर सुपर डुपर ब्लेस्ड नाउ। तो ओके। सिग्नेचर, यू आर व्हाट योर सिग्नेचर इज, यू आर व्हाट यू ईट, व्हाट आर यू फीडिंग योर एनर्जीज, दैट डेली व्हाट मैटर्स। यू आर डूइंग इट दैट हाँ, मैटर्स वो अ लॉट। सिग्नेचर बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप गूगल पे भी जाके देखेंगे सिग्नेचर ऑफ सक्सेसफुल पीपल, और इमेजेस में जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल हाँ, जाता है। इनफैक्ट वो जो राइटिंग प्रैक्टिस जो ग्राफोलॉजिस्ट एंड ऑल होते हैं, वो लोग भी तो आपको सिग्नेचर्स प्रैक्टिस करवाते हैं कि करवाते हैं। प्लीज कीप ऑन डूइंग सिग्नेचर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। यस इट मीन्स इट इम्पैक्ट अ लॉट। यस। तो सिग्नेचर का भी एक टोटल नंबर होता है। आपकी साइन का भी, आप नाम की तरह कुछ कुछ ना कुछ लेटर्स लिखते हो, तो उसका भी अगर टोटल एडिशन होता है, प्लस सिग्नेचर करने का पैटर्न होता है, प्लस सिग्नेचर में हम मनी बैग्स ऐड करके देते हैं। दोज मनी बैग्स आर नॉट ओनली फॉर मनी, बट दोज बैग्स आर फॉर HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, आपका चारों एरिया बैलेंस कर देता है। तो सिग्नेचर इज़ वेरी पावरफुल। अगर सिग्नेचर के बाद कोई डॉट लगा दे तो आप देखोगे उनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत आती हैं। या तो इंसान अपनी एज के पहले ही अ, बना डेथ होने के चांसेस, लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, डॉट लगा देते हैं। हाँ, अगर सिग्नेचर के बाद डॉट लगा रहे हो, डॉट मीन्स फुल स्टॉप, आपका करियर भी हाँ, स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। यस जो लिसनर सुन रहे हैं उनके लिए तो काफी, मतलब वो तो कोई डॉट लगा रहा होगा तो वो तो इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए फिर। एब्सोल्युटली। मेरी एक ही मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं एक ही सेलिब्रिटी के पीछे फ़ैन फॉलोइंग बोलेंगे, वो लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी जी। उनका शादी के बाद जो नेम चेंज हुआ, वो उनका डेट ऑफ बर्थ 4 पे आता है, उनका टोटल भी 4 पे आता है। शी डिड वेरी वेल इन हर लाइफ,
बचपन से उन्होंने काम किया, वो अपने लिए कभी जी नहीं पाई। और जब शादी के बाद उनका नेम चेंज हुआ तो वो दो तरीके के नाम यूज़ करती थी। एक श्रीदेवी कपूर जो 4 पे आता था, और श्रीदेवी बी कपूर जो 51 पे आता था। 51 आप बोलोगे 6 है, लेकिन वो अच्छा होता है, लेकिन 6 के में भी ऑक्टेव्स होते हैं। अगर 15 और 51 का ऑक्टेव आप यूज़ करो तो वो डेंजरस है, इट्स अ नंबर ऑफ असैसिनेशन। तो वो नहीं हम बिल्कुल अलाउ करते। इवन फ्लैट नंबर्स, गाड़ी नंबर्स में हम 15 और 51 सजेस्ट नहीं करते हैं Okay. जी। Yes, Sushil ji, you when I came to you, you asked me to, you converted my energy to 6 number, right? Yes. But Facebook and Insta पे मैं, I wasn't able to change my name. So will it, affect my energy somehow? इंस्टा और फेसबुक हम बिजनेस के लिए भी यूज़ करते हैं, काफ़ी नेटवर्किंग के लिए। लोग, एवरीबडी कम्स फॉर नेटवर्किंग, कुछ फ्रेंडशिप के लिए आती है, कुछ बिजनेस के लिए आते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। सो मेरा ये मानना है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सो अगर आपकी वहाँ पे भी एनर्जी से डेफिनेटली मैटर करती है। जैसे फ़ोन नंबर भी आप कम्युनिकेट करते हो, सारी चीज़ें फ़ोन नंबर से होती हैं। तो फ़ोन नंबर, आपका सोशल मीडिया नेम अगर सही नहीं है तो वो आपको अगर चेंज करने का मौका मिलता है और कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। So you must have heard, of course, what is Loshu grid. यस। So Loshu grid में काफ़ी सारे numbers किसी के मिसिंग होते हैं एंड काफ़ी नंबर्स रिपीट होते हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप लिसनर्स को बताएं कि लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन। और राजयोग जिसको बोलते हैं, कौन से नंबर से राजयोग बनता है? सी बेसिकली ना, लोशो ग्रिड इज़ अ चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। वो चाइना के समान जैसे ही काम करता है। ज़्यादा लोशो ग्रिड आपको इफेक्ट नहीं देता है। हाँ, मिसिंग एलिमेंट्स आप पता कर सकते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो वुड का ब्रेसलेट पहन लिया आपने, वुडन कुछ पहन लिया गले में। अगर आपके पास 6 या 7 नहीं है तो मेटल का काम। नंबर 6 नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो आप गोल्डन वॉच पहन लीजिए, या गोल्ड का कड़ा पहन Okay. लीजिए हाथ में। Okay. और अगर आप 7 नहीं है तो सिल्वर का वॉच पहन लीजिए। तो अच्छा, ऐसे तो उससे एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए फिर वो एलिमेंट्स के लिए नंबर काम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होता और है। अगर किसी के लोशो ग्रिड में 3 बार 3 टाइम्स अगर 2 रिपीट हो रहा है तो फिर व्हाट डज दैट मीन? वो लोशो ग्रिड में ही नहीं, हमारी जो न्यूमरोलॉजी की टेक्निक है उसी में भी है। 2 इज मून अगेन। वो आपको बहुत ही इमोशनल बना देगा। इट विल गिव यू रेस्टलेस माइंड, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। आपकी नींद पे इम्पैक्ट होगा, आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट होगा। वाटर एलिमेंट है। सो उसको अगेन फिर से अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको आपके नेम एनर्जी और सिग्नेचर एनर्जी के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता ओके। है। यस। सो कौन सा नंबर अगर रिपीट होता है तो वो अच्छा होता है? देखा जाए तो कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं है। कोई भी नंबर ज़्यादा रिपीट होना, इट्स लाइक आपको अगर कोई मेडिसिन लेनी है और आपको डॉक्टर बोल रहा है 5 mg की आपको टैबलेट की ज़रूरत है, वो 10 mg ले लोगे तो बॉडी भी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कोई भी नंबर अगर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो वो एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। ओके। यस। जैसे 1, अगर नंबर 1 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो वो आपको फायर एलिमेंट, इवन 9 भी फायर एलिमेंट है, लेकिन वो मार्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी, दोनों में फ़र्क होता है। मार्स की थोड़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, सन की थोड़ी फेम की एनर्जी होती फेम है। एंड यस। वेल्थ। ओके। यस, मार्स विल ऑलवेज इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड, ऑन योर प्रॉपर्टी, ऑन योर मैरिड रिलेशनशिप, शादी के, वो उस पर इम्पैक्ट करता है। लेट्स टॉक अबाउट सम मास्टर नंबर, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया। व्हाट डज दैट मीन? मास्टर नंबर्स का अपना एक एनर्जी होता है, वो पावरफुल होते हैं, लेकिन अगेन फिर से मेरा मानना है कि 11 है तो बहुत अच्छा है। उसको हम 2 नहीं बोलेंगे, उसको 11 ही बोलेंगे, बिकॉज इट्स अ मास्टर नंबर। लेकिन अगर 22 की बात करें तो वो 4 पे आ जाता है अगेन। तो बोले वो कितना भी मास्टर नंबर हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 33 इज़ अगेन गुड, 44 इज़ अगेन बैड, 55 इज़ ओके, 66 इज़ अगेन ओके। एक 60 के आगे आप चले जाते हो, कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको आता है नेम एनर्जी कैलकुलेट करना, 60 के अगर आगे चले जाते हो तो फिर वो नंबर्स इम्पैक्ट करे ना करे, वो न्यूट्रल भी हो जाता है। और अगर नेगेटिव एनर्जी पे तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। एंड व्हाट अबाउट द ब्यूटी रिचुअल्स कि हमारे ऐसे कोई नंबर्स हैं जिससे हमारी ग्रूमिंग, हमारे ब्यूटी रिचुअल्स, व्हिच वी कैन कैरी ऑन दोज स्पेशल डेज? तो ब्यूटी रिचुअल्स और नंबर का ये कनेक्शन है कि अगेन आपके जो लकी नंबर्स होते हैं, लकी डेट्स होते हैं, और आप अगर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपका, वंस योर नेम एनर्जी इज करेक्टेड, योर सिग्नेचर इज करेक्टेड, देन यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल। एंड ऑफ कोर्स वट एवर यू यूज, आई एम श्योर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा कि यू विल बाय अ हाई एंड प्रोडक्ट एंड यू विल लुक ब्यूटिफुल एनीवेज। It will change your energy, aura, एक vibrate. See, before you speak, your energy speaks.
ओके सो लोग हम बोलते हैं ना अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, अच्छे ज़रूरी नहीं है. योर एनर्जी मैटर्स अ लॉट. बिफोर यू स्पीक योर एनर्जी स्पीक्स. सबका आपका नेम एनर्जी न्यूमरोलॉजी बैलेंस है, करेक्टेड है, तो इट विल हेल्प यू इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, इवन ब्यूटी. Okay, so do you think that beauty and wellness industry is missing on the numerology side? Beauty, Personalization and all. not only beauty and wellness industry, every Yeah. industry, yes. Okay. Bollywood है, beauty wellness, of course. Beauty wellness industry बहुत important है. अच्छे products use करना. Yeah. If you look good, you feel good. So it is हाँ. very important. Okay. Yes. Is it अगर कोई न्यूमरोलॉजी से अपना ब्यूटी ब्रांड ओपन करे तो विल इट पुट एनी इम्पैक्ट? एब्सोल्युटली. कोई भी कंपनी आप अगर खोलते हो तो आपका जो ब्रांड नेम होता है वो अगेन जैसे आप अपने नाम चेंज करते हो, स्पेलिंग चेंज करते हैं न्यूमरोलॉजी के अच्छे इफेक्ट आने के लिए, वैसे अगर आपका ब्रांड नेम अगर आपके हार्मनी और आपके फेवरेबल नंबर पे अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बिजनेस में जो आप एफर्ट डाल रहे हो वो 10% की जगह 1000% आपको इफेक्ट देता है. Okay. Yes. If someone has been living against their number for years, for example, like number 4, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, and number 8 again, and number 4 जिसका होता है वो हमेशा they feel scattered. So how they can start realigning with their energies then? Then they have to consult a very good astronumerologist and change their name, energy, signature, and that's how they can rectify their life. Okay. So अगर planets गलत है, अच्छी पोजीशन पे नहीं है और अगर नेम चेंज करवा लिया तो विल दे सी पॉजिटिव इम्पैक्ट, या प्लानिटरी पोजीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? प्लानिटरी पोजीशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट हॉरोस्कोप कुंडली, अब हमको लगता है कि कुंडली हमारा हॉरोस्कोप इज आवर डेस्टिनी. इट इज़ नॉट आवर डेस्टिनी, इट्स अ मैप ऑफ योर डेस्टिनी. You can definitely make changes in your numerology and signature, और उससे आपकी planetary position जो भी ill effects दे रहे हैं वो भी आपको, उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होने लगता है. ओह वाओ. बिल्कुल. सो डू यू थिंक ऐसा कोई नंबर है जो कि मिसअंडरस्टूड है? बिल्कुल. 4, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 भी मैंने काफ़ी बार देखा है. लोग द हाईली मिसअंडरस्टूड पीपल विद हार्ट ऑफ गोल्ड, मैं कहता हूँ ऐसा. सो ऐसे हैं काफ़ी, और जिनका नेम एनर्जी अगर बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब पे तो उनको भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होना पड़ता है. ओह, इज इट सो? Yes. Okay, now we'll play a quick one-liner. Which number is considered the most powerful? 6, Which number is best for money and success? 5 and 6. Does having too much of one number create imbalance? Yes, it does. Does changing signature affect numerology? Of course, you said it right now. Big time. You are what your signature is. Does using initials instead of full name changing, like, it changes anything? Of course, even your initials have some kind of number aligned to it. तो उसका भी total देखना पड़ता है. Okay. So Sushil ji, does social media name matter? Yes, it does matter. Can a wrong business name affect growth? Big time. It will in fact take you back in your it creates a problem. Yes. Should we choose lucky numbers for phone or cars too? Definitely. ऐसा भी बोला जाता है ना कि when you're choosing the number, it should not be in descending order, it should be in ascending order. वो मैटर नहीं करता है. मोबाइल न्यूमरोलॉजी नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आपको हम देखते हैं 55 555 ऐड करके देता हूँ मैं, अगर रिक्वायरमेंट है उसके क्लाइंट की एनर्जी के हिसाब से, तो और उसका टोटल जो होता है मेन ऑक्टेव वो मैटर करता है. Descending and Yes. ascending it does not. एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं होना चाहिए मोबाइल नंबर में, लास्ट में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बीच में 555 का कॉम्बिनेशन कब आएगा, 55 का कौन से नंबर, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती है जो हम जो एक अच्छे Okay. एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकता है. Can numbers show compatibility in relationship? यस, बिल्कुल बताते हैं. अगर बहुत सारे लोग शादी से पहले आ जाएं तो अच्छी बात है, शादी के बाद अगर आ जाते हैं और तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि हमें डिवोर्स लेना है, नहीं जम रहा है, मतलब आप दोनों का नेम एनर्जी चेंज करिए, 1 साल रुक जाइए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस मैंने सॉल्व किए हैं. If 4 and 4 gets married to each other, then इट्स अ डेंजरस कॉम्बिनेशन. थोड़ी दिक्कतें होती हैं. हर नंबर में, हर शादीशुदा कपल में आती है प्रॉब्लम, बट 4 and 4 and 4 and 8 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं. तो हम सजेस्ट करते हैं अगर आपका नेम एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट अगर अच्छे एनर्जी पे, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी नहीं. सिग्नेचर चेक करते हैं, सिग्नेचर में बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों की, तो साइन चेंज करके भी हम उनको रिजल्ट देते हैं.
If someone will call with my nickname, Hmm. then it will affect my energy. नो इट विल नॉट. आपको कोई भी नाम से कोई भी बुलाए प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके बैंक में जो नाम आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको उसका ओके, बाकी असर दे देगा. आपको किसी भी नाम से कोई भी बुलाए, नाम से बुलाए, doesn't कोई भी नाम matter. से सेव कर ले, आपका कोई भी स्पेलिंग आपका सेव कर ले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. If someone cannot legally change their name, what they can do, you had already told me. Can we change spelling only for usage without legal change? यू कैन, बट वो इम्पैक्ट नहीं देता है जनरली. वो यू कैन Okay. प्रैक्टिस योर सिग्नेचर Okay. 24 times a day. Okay. Can we improve our number without changing our name? You can improve your number without changing your name. If your name is by default on a good energy, then it is not required. But if it is not, you will have to change it. And if you don't want to change it, then there is a signature change option. You can do it. And there are a couple of few other techniques जो हम help कर देते हैं. Okay. तो वो help कर Easily देते. हो Yes, जाता yes, है. yes. Should we check numbers before important diseases? Definitely, you should check dates as per your numbers and energies. कब जैसे वर्क चालू करना है तो कब यू काम हैव टू चालू? चेक. लोग मुहूर्त देखते हैं. मैं बट मुहूर्त से ज़्यादा आपको डेट्स नंबर भी देखना चाहिए. हाँ, लोग मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त बट देखते हैं. नंबर देखना चाहिए कि वो नंबर हमारे लिए अनलक्की तो नहीं है जब हम काम चालू कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. जब आप डेट एक बार सिलेक्ट कर लेते हो उसमें मुहूर्त, तो आपको हर डेट पे हाँ. मुहूर्त चेंज होता रहता है हर 2 So घंटे में. before I met you, I also used to check मुहूर्त only. Now I specifically focus on dates कि मुझे इन्हीं डेट्स पे वर्क करना है. वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप नंबर्स को फॉलो करो. तो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी भी, अगर आज भी हम किसी को शादी में लिफाफे में पैसा डाल के देते हैं तो 1 रुपया ऐड करते हैं. तो 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा, बट वन इज पॉजिटिव नंबर. तो ज़ीरो पे नहीं एंड करते, एक शुरुआत है. तो वो एक शगुन में एक अच्छा काम करता है. वो भी न्यूमरोलॉजी है. अच्छा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन. खबर आपने दिया. Yes. Okay. Are numbers fixed or can they evolve over time? Numbers are always fixed, evolving by changing your name energy again, your signature, या by playing a proper game न्यूमरोलॉजी का अगर आप कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको इवॉल्व कर देता है. Okay. अगर आपके फिक्स नंबर्स है और अच्छे नंबर्स नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम ही करेगा. Okay. Yes. तो अगर जैसे आपने किसी का नेम और नंबर चेंज किया है, राइट, मतलब नेम चेंज किया है एंड ऑफ कोर्स यू आर चेंजिंग द एनर्जी, तो इवन आफ्टर 40 years द पर्सन विल हैव द सेम इफेक्ट और नो? यस. आप चेंज करोगे उसके बाद आपको इफेक्ट आने लगे. फिर वो 40 का 50 का जो भी उसकी बची हुई जिंदगी है वो बेस्ट जी पाएगा इंसान. ओके. नहीं, Yes. 40 तक वो नंबर उसने चला लिया, बट हाँ. देन स्टार्स कीप्स ऑन चेंजिंग, प्लैनेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, तो वही सेम नंबर उतना ही इम्पैक्ट देगा उसको आफ्टर 40 years. हाँ, दे देगा. जो भी उसकी आने वाली जिंदगी, आने वाला समय बचा है उनकी लाइफ में, वो बहुत अच्छे से वो गुजरता है. ऑफ कोर्स इट गिव हिम और हर अ बेस्ट इम्पैक्ट. Okay, now let's have a quick talk about numbers. Number 1 represents what? सन. Sun. और अगर किसी के पास नंबर 1 होगा तो नंबर 1 काफ़ी अच्छा ऑक्टेव. आप देखोगे अंबानीज में नंबर 1 और नंबर 9 बहुत कॉमन है उनके सारे फैमिली में, मुकेश जी के. एंड वो बहुत सक्सेस. उनकी गाड़ियों के भी आप नंबर देखोगे तो टोटल 1 और 9 पे ही यूज़ करते हैं. वॉट एवर नंबर ऑफ कार्स दे हैव. किसी सलमान खान ही विल यूज़ नंबर 9. किसी अमिताभ जी सारे गाड़ियों के नंबर 2 पे जुड़ के आते हैं. शाहरुख खान, ऑल द कार्स हैव 555. He uses. Yes, Okay. it does So work. मतलब कार के numbers not necessary that you have to keep it as per the destiny numbers. You can choose it apart from the destiny number also. Yes. आपकी पूरी डेस्टिनी, लाइफ पाथ, आपका एलिमेंट्स, आपके मंथ ऑफ बर्थ, ये सबको सबको ऐड करके उसका बैलेंस चेक करके आपको एक नंबर दिया जाता है. वही हम कहते हैं कि आप कार के लिए भी यूज़ कीजिए, मोबाइल के लिए भी यूज़ कार कीजिए. कितनी इम्पोर्टेंट रहती है लाइक एज नंबर्स अगर हो, बिकॉज पर्सन मुंबई में तो हाफ ऑफ द टाइम कार में ही स्पेंड करता है. आप इफ समवन हु इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो कार कितना इम्पैक्ट करती है न्यूमरोलॉजिकली अगर नंबर सही नहीं हो या सही हो तो? आप देखोगे मैक्सिमम गाड़ियों के जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं वो नंबर 4 या 8 पे जुड़ के आती हैं. और भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप जो 4 और 8 नहीं है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं. इवन 5 की कुछ कॉम्बिनेशंस है, मैं बता सकता हूँ. अगर आपको आपकी एनर्जीज के हिसाब से आपको वो सूट नहीं कर रहा है. और मैक्सिमम कार्स के एक्सीडेंट देखोगे तो जो ब्लैक कलर की गाड़ी होती है, हम मास्टर न्यूमरोलॉजी में ब्लैक और रेड अवॉइड करने भी बोलते हैं लोगों को, कार में? गाड़ियों के लिए भी और कपड़ों के लिए भी. अनलेस
unless you have a good Mars balance in your life, you can use a little bit of red, but black is not advisable. Black is again Shani, it gives you a number 8 energy. ब्लैक 8 का एनर्जी देता है, रेड 9 का बट एनर्जी अगर देता किसी को है. ब्लैक कार पसंद ही है, खरीदनी ही है, तो हाउ टू बैलेंस दैट एनर्जी? सी मैं सजेस्ट करूँगा, एक चीज़ अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो 100 चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हो वो कर पाओगे. तो इट्स गुड टू सेक्रीफाइस वन थिंग, बिकॉज वो आपके लिए फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है. अगर गाड़ी का नंबर भी अगर गलत एनर्जी पे तो वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है. तो हाँ, मतलब 4 और 8 नहीं होना चाहिए. यस, जिंदा रहेंगे तो Interesting. बहुत सारी गाड़ियाँ चलाएंगे. जी. Then number 2, let's talk about number 2. Number 2 is the number of moon. Yeah. मून इज अगेन लोगों को लगता है कि सबसे खतरनाक प्लैनेट, सब जो लोग डरते हैं सबसे खराब प्लैनेट होता है शनि, राहु, केतु. मगर अगर आप देखा जाए तो एक्चुअली सबसे खतरनाक प्लैनेट और सबसे डरावना जो बोलते हैं ना डरना चाहिए प्लैनेट, वो मून होता है. बिकॉज मून आपका माइंड कंट्रोल करता है. सो नंबर 2 का अगर आपको आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी है, तो देखोगे वो जनरली बहुत ही ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस माइंड, वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशंस में बहुत ही दिक्कत देगा. पानी से भी जुड़ा हुआ होता है. लिक्विड कैश को भी 2 से जोड़ते हैं, चंद्र से जोड़ा जाता है. सो मून बहुत सबसे डरावना प्लैनेट My मून daughter है. is having number 2 and I think you had changed her number Yes. because of that. Yes. Oh, Yes. that was the concept. Now Yes. number 3. So number 3 is Mercury. नंबर 3 इज जुपिटर, बृहस्पति. यस. अगर नंबर 3 बहुत अच्छा नंबर होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए अच्छा होता है. जो भी आप नंबर 3 के लोग देखोगे, अगर आपके लाइफ में कोई नंबर 3 का इंसान आ जाए तो थैंक यू बोलिएगा भगवान को, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है. फ़ायदा इन द सेंस, यस, फाइनेंशियली, मेंटली. अगर आप दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है तो फाइनेंशियली, दोस्त बन के आएगा तो इमोशनली, मॉरली आपको बहुत अच्छा. नंबर 3 बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन जनरली नंबर 3 के लोग दूसरों के लिए बहुत जीते, अपने लिए नहीं जी पाते, और बहुत जल्दी अर्ली उनको स्ट्रगल आता है लाइफ में. मेजॉरिटी केसेस में वेरी फ्यू नंबर 3s यू विल फाइंड हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, एंड नॉट जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो उनको दिक्कत नहीं आएगी. नंबर 3 इज़ अ वेरी गुड नंबर इन न्यूमरोलॉजी. उनका हाथ कभी रुकता नहीं है, उनके पास पैसा हमेशा आता है. Okay. And number 4? नंबर 4 अगेन इट्स राहु. वो बहुत दिक्कत देता है. सक्सेस अगर आप देखोगे काफ़ी नंबर 4 बहुत सक्सेसफुल, जैसे श्रीदेवी की बात करें, एक्ट्रेस, आई लव दैट एक्ट्रेस, श्रीदेवी जी की बात करें तो वो बहुत ही बचपन से उन्होंने काम शुरू किया और उनको वो अपने लिए कभी जी नहीं पाई. दिक्कत ये आती है वन यू सॉ कि लाइफ के एंड में वो एक मिस्टीरियस तरीके से जो उनके साथ हुआ, तो जनरली होता है. जिनका नेम एनर्जी 4 पे जुड़ गया था उनकी आप मिस्टीरियस डेथ देखोगे. सिंगर आलिया करके हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ वेरी हाई टेक कंट्री, एंड इट इज़ अ रीसेंट केस. नेम का टोटल 4 पे एंड हो रहा है तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है. या हाँ, बहुत दिक्कत हो जाती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग है. लाइफ थ्रेटनिंग है. नंबर 5? नंबर 5 इज अगेन मर्क्यूरी. वो बहुत अप एंड डाउन करता है, बट 5 इज अगेन अ गुड नंबर इन एज पर न्यूमरोलॉजी. बट हमें जनरली अगर मैं देखता हूँ कि अवॉइड करता हूँ अगर 5 पे ना लेकर आऊँ, क्योंकि वो तो मर्क्यूरी बहुत मूव करता है, नंबर ऊपर नीचे करता है, लाइफ में बहुत आगे पीछे करेगा. अगेन वो डाइजेशन के, रेस्टलेस माइंड के इश्यूज आपको देगा, स्किन के भी इश्यूज देगा. अच्छा. यस, जिनको नंबर 5 का इन्फ्लुएंस है, नेम में है या डेट ऑफ बर्थ में या सिग्नेचर में है, तो डाइजेशन, स्किन, रेस्टलेस माइंड. नंबर 6? नंबर 6 इट्स अ वेरी गुड नंबर. इवन नंबर 6 के भी ये ड्रॉबैक्स हैं. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है. नंबर 6 के लोग भी बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही उनको एक प्यार का बहुत क्रेव होता है कि हाँ मुझे कोई मेरी केयर करे, मेरे साथ अच्छे से रहे, रिलेशनशिप. अगर वो बहुत इमोशन उस चक्कर में आके वो बहुत बार मिसयूज, कोई भी उनको आसानी से मिसयूज कर सकता है. नंबर 7? नंबर 7 केतु का नंबर है. बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन वो भी आप देखोगे नंबर 7 की इन्फ्लुएंस के लोग आसानी से डिप्रेशन में जा सकते हैं. अच्छा. यस, दे आर गुड इन रिसर्च, या वो किसी एक काम में एक्सपर्ट होते हैं, और वो जिस पे एक्सपर्ट होते हैं उनको उन्हीं काम में काम करना चाहिए. ओके. Yes. एंड नंबर 8? शनि. नंबर 8 जैसे 3, 6, 9 इज फैमिली ऑफ नंबर्स. 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है. 8 एक अलूफ नंबर्स है, इनको कोई फैमिली ऑफ नंबर्स नहीं है. शनि का नंबर है, अगेन वो दिक्कत देगा नंबर्स. अगर आप 8 नंबर के हो तो आपको अपना करेक्शंस करवा लेना चाहिए. ओके. एंड नंबर 9? नंबर 9 इज मार्स का नंबर, वेरी एग्रेसिव,
Okay. शॉर्ट टेम्पर्ड। 9 नंबर के लोगों को आप देखोगे इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन लेने के बाद पछताते हैं, मैंने गलत डिसीजन लिया है। उनको भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उनको अच्छा। हीट ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। बाकी उनका डेस्टिनी नंबर भी चेक किया जाता है, टोटल लाइफ पाथ, नेम Okay. एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ये Okay. तो जेनेरिक बोलते हैं कि ये नंबर के लिए ये इशू है, वो नंबर के लिए ये इशू है, बट दीज आर कॉमन इश्यूज वी कैन सी। बट बहुत Yeah. सारे अलग इश्यूज भी आते हैं, Yeah. वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। Okay. So ये साल सुशील जी कैसा जाने वाला है? ये साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है जिनकी नेम एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी है, सिग्नेचर अच्छी है, या उनके प्लानिटरी पोजीशंस में दिक्कत नहीं है। महादशा भी मैटर करती है, लोगों की दशाएं चेंज होती है। अच्छा। यस, जिस घर में Okay. आप रहते हो वास्तु चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, Okay. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू Okay. एलिमेंट्स। Sushil ji, it was wonderful session with you. Had a wonderful chat with you, सेम and you यार, had given a beautiful insights about numbers. You know how to, like, mobile number कैसा होना चाहिए, car number कैसा होना चाहिए, and रियली लिसनर्स जो हमें सुन रहे होंगे उनको काफ़ी इस सेशन से फ़ायदा होने वाला है, इस शो से फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच सुशील जी, बट बिफोर वी एंड आई हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर यू। सो सुशील जी, दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर यू, थैंक and यू we have सो मच। customized this with your photo. Even we have a bookmark customized, ग्रेट। and this is, already know it's Leaf Berry, my baby Your brand. products are amazing, no Thank doubt. you so I've much. used it and I'm very happy. Oh wow. Yes. Thank you, Ghazal ji. Thank you. I think when I didn't launch the product, you were the first one whom I had gifted this hamper. Yes. And my cousin also used it. Even he liked it. Thank you. Thank And we have another one for you as it's a lucky, what you call it, Charm. shank, Nah. lucky charm, yeah. Very good. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much. So, Glow fam, this conversation has been exactly what I hoped. Grounded but expensive. Practical but a little mythical too. What I am taking away is about numerology isn't about limitation. So here is your assignment, listeners. Calculate your destiny number tonight. Sit with it, and this week try something. Dress from that energy intentionally. Notice what shifts inside you, how you feel, how people respond, how you carry yourself. If this episode landed for you, share it with someone who needs to hear it. Tag us, leave a review, and tell us your destiny number. We genuinely want to know. Until next time, trust the numbers, trust yourself, and never underestimate the power of showing up as exactly who were you designed to be. And to everyone watching, if this conversation resonated with you, don't forget to like, share, and subscribe to Glow with Ghazal.